کشمیر کے مختلف علاقوں میں راٹن میٹ کی برآمدگی کے بعد لوگوں میں کافی تذبذب پایا جاتا ہے، لیکن دوسری جانب فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کی بھی سراہنا ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے مختلف علاقوں میں جو کارروائیاں انجام دی ہے تو یقینی طور پر وہ قابل داد ہے۔ مزید اس سلسلے میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے اسسٹنٹ کمشنر فوڈ سیفٹی کشمیر ہلال احمد صاحب۔ سر خیر مقدم ہے، جاننا چاہیں گے اوور آل ابھی تک کیا کارروائیاں رہی ہے؟ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کئی کوئنٹل جو ہے میٹ بھی برآمد ہوئے، چکنز بھی، باقی جو اشیاء تھے تو وہ بھی برآمد ہوئے، اور اس سلسلے میں مزید کیا کارروائی رہے گی اور اب تک کیا کارروائی ہوئی ہے؟ دیکھیے، جو کارروائی ہم نے پچھلے ایک ہفتے میں، صرف میں ایک ہفتے کی بات کروں گا، تقریباً ہم نے 45 کوئنٹل کا اس قسم کا گوشت جو باہر سے لوگوں نے لایا تھا، جس میں لیبل نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس میٹ کو پراپر ٹیمپریچر کنٹرول سسٹم میں نہیں رکھا تھا۔ یہ جو میٹ اینڈ میٹ پروڈکٹس ہیں یا چکن اینڈ چکن پروڈکٹس ہیں، دیز آر ویری ہائیلی پیریشیبل آئٹمز۔ اگر ہم ان کو پراپر ٹیمپریچر کنٹرول سسٹم میں نہیں رکھیں گے، -18 جو ٹیمپریچر ہے اس میں نہیں رکھیں گے، تو تب یہ جو فوڈ آئٹمز ہیں اس قسم کے وہ سپائل ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو گیا ایک مشن جو ہمارا تھا۔ دوسرا، اس کے ساتھ ساتھ جو فوڈ بزنس آپریٹرز سنتھیٹک فوڈ کلر کا استعمال کرتے ہیں، پرٹیکولرلی جو ہمارے ریسٹورانٹ والے ہیں، ہوٹل والے ہیں، یا جو ڈھابے والے ہیں، یا جو چھوٹے چھوٹے ریڈیو پہ کام کرتے ہیں، وہ جو وہاں پر سنتھیٹک فوڈ کلر کا استعمال کرتے ہیں، وہ بھی ایک ایشو ہے، اور اس ایشو کو بھی ہم بڑے اسٹرکٹلی اس کو بھی آج کی ڈیٹ میں ٹیکل کر رہے ہیں۔ یہ جو دو ایشوز ہیں، ایک میں نے کہا کہ جو باہر سے میٹ آتا ہے یا چکن آتا ہے، اس کے پروڈکٹس آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ریسٹورنٹوں میں اتنا ہی نہیں ہے۔ ریسٹورنٹوں میں بڑا امپورٹنٹ، یہ بھی میں بڑے امپورٹنٹ بات یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ گھروں میں بھی لوگ جب وازوان کے گھروں میں بناتے ہیں، شادی بیاہ کا کوئی موقع ہوتا ہے، تو وہاں پہ وہ لوگ یہ سنتھیٹک فوڈ کلر کا استعمال کرتے ہیں۔ کہیں پہ آش پاس وہ اس نے وہیں سے لایا ہوا ہوتا ہے۔ تو میری لوگوں سے گزارش رہے گی کہ مہربانی کر کے جو سنتھیٹک فوڈ کلرز ہیں، یا جو وازوان میں استعمال کرتے ہیں، یا جو ریسٹورنٹ والے مختلف قسم کی جو وہ کیوزنز بناتے ہیں اس میں استعمال کرتے ہیں، ان چیزوں کا استعمال نہ کریں۔ اگر ہم نے کہیں پر بھی پایا کہ ان چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے، سنتھیٹک فوڈ کلرز کا استعمال ہو رہا ہے، ان لوگوں کے خلاف جو بھی کنیکٹڈ پارٹیز ہوں گے، ان لوگوں کے خلاف فوڈ سیفٹی ایکٹ کے دائرے میں ہم سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائیں گے۔ یہ جو ایشو، جو میٹ کا ایشو آج اٹھا، بدقسمتی کی بات ہے، کچھ لوگوں نے اس کو ریلیجس اینگل دینے کی کوشش کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں حرام ہے، کس جانور کا ہے۔ تو میں اس بات کو یہاں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہی جانور ہے جن کا گوشت یہاں پر استعمال ہوتا ہے، اور جو حلال طریقے سے وہاں ذبح ہوئے ہوتے ہیں، وہ ڈپارٹمنٹ نے انشور کیا ہو پہلے سے۔ اب کوشچن یہ بھی اٹھتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ہم کیا کھاتے تھے۔ پرابلم یہ ہے کہ فوڈ سیفٹی ایکٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے، جو لیبلنگ نہیں ہے یا جو پراپر ٹیمپریچر کنٹرول سسٹم میں نہیں لایا گیا ہے۔ مگر یہ جو میں نے کچھ جو ہمارے امام حضرات ہیں، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، مگر جو ان کو اس چیز کو اب ریلیجس اینگل دینے کی کوشش کی، میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ وہی جانور ہیں جن کا ہم استعمال یہاں پہ کرتے ہیں، اور وہاں یہ حلال طریقے سے ذبح ہوتے ہیں، یا چکن بھی وہاں حلال طریقے سے سلاٹر ہوتے ہیں۔ اس چیز کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی بھی کنزیومر کو کوئی بھی کمپلینٹ ہو وتھ ریگارڈ ٹو کوالٹی آف فوڈ آئٹمز، ہمارا ایک ٹول فری نمبر ہے جو ہم نے آلریڈی مشترک کیا ہوا ہے، چاہے پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے۔ ہم میڈیا کے بڑے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہماری یہ مہم کور کی، بڑے شکر گزار ہیں ہم آپ لوگوں کے۔ تو یہ جو وہ ٹول فری نمبر ہے، ہمیں اس پہ کمپلینٹس آتی رہتی ہیں، اور میں کمپلینٹس کی کیوں بات کر رہا ہوں؟ بیکاز جو ہمیں کمپلینٹس ملتی ہیں، تو جو ہمارا پھر وہاں پر انسپیکشن ہوتا ہے وہ ٹارگیٹڈ انسپیکشن ہوتا ہے۔ جب ہم روٹین انسپیکشن پہ نکلتے ہیں، ہم کسی مینوفیکچرنگ یونٹ پہ گئے تو وہاں ہم نے کوئی ایک یونٹ پہ گئے تو دوسرے سترک ہو جاتے ہیں، وہ کاشس ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر وہاں پر کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو وہ چھپا بھی رکھ سکتے ہیں۔ یا کسی دکان پہ جو روٹین میں انسپیکشن ہوتی ہے، کسی دکان پر ہم چڑھے تو باقی جو اگل بغل میں دکاندار ہوتے ہیں وہ سترک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میری لوگوں سے یہ گزارش رہے گی، اگر انہیں کوئی بھی کمپلینٹ ہو وتھ ریگارڈ ٹو کوالٹی آف فوڈ آئٹمز، جو ہم نے 104 نمبر اپنا دیا ہے پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا میں، اس کے ذریعے سے وہ ہم تک پہنچ سکتے ہیں، یا ہم نے میلنگ ایڈریس بھی دیے ہیں، میل کر سکتے ہیں اپنی کمپلینٹس، اور جو ان کی کمپلینٹ ہوگی
within 24, we try to address that complaint within 24 hours. लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. जो हमें यहाँ बेड यहाँ आते हैं बाहर से, या जो चिकन आते हैं और लोकली जो स्लाटर होते हैं, उसमें बिल्कुल किसी किस्म की ख़राबी नहीं है. और ये जो बाहर से आता है, इसको हम कम्प्लीटली रेगुलेट करेंगे. जब हम इसको पूरी तरह से रेगुलेट करेंगे, तभी हम इनको वहाँ से बाहर से इस किस्म का जो गोश्त है या जो चिकन है लाने दे देंगे. मगर एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो लोगों में ये भी है कि कोल्ड ये जो इस किस्म के प्रोडक्ट्स आते हैं, क्या ये वो जो मैंने कहा कि हलाल वाला, मगर जो एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो फ्रोज़न आइटम्स हैं उनको हम बैन नहीं कर सकते हैं. फ्रोज़न आइटम्स आर अलाउड वर्ल्ड वाइड, ये हर जगह इस्तेमाल होते हैं. उनमें ये कहूँगा कि कुछ पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऐसे हैं जहाँ सिर्फ फ्रोज़न आइटम्स ही इस्तेमाल होते हैं. मगर इनको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करना है. जब हम इनको अच्छे तरीके से रेगुलेट करेंगे, तभी हम इनको यहाँ आने देंगे और लोगों को फिर खाने की इजाज़त दे देंगे. तो जिस तरह से आपने खुद कहा कि मजहबी रंगत की देने की भी कोशिश की गई और फतवा भी जारी हुआ इस हवाले से, तो ये जानना चाहेंगे कि लोगों में जो क्यास कन्फ्यूजन्स है अभी, तो उस हवाले से क्या मैसेज रहेगा आपका और आगे किस तरह की कार्रवाई आपका डिपार्टमेंट जो है वो अमल में लाएगा? देखिए, जो आपने खुद भी कहा कि इसको मैंने आपसे बात वो शेयर की कि रिलीजियस इसको एंगल देने की कोशिश की गई. मैं उन खतीब हजरात से मुझे उनका बहुत एहतराम है. मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट एक लगा हुआ है. हमें पता है कि जो मीट आता है, जो पहले भी आता था, ये नहीं है जो आप ये हमने, हाँ इसमें ये था जो मैंने कहा कि वायलेशन ऑफ फूड सेफ्टी एक्ट. नॉट ये कि खुदा न खास्ता कोई इसमें उन्होंने वहाँ से पता नहीं, ये कहते हैं कि पता नहीं किसका गोश्त है क्या है, वो बात बिल्कुल नहीं है. और अगर ये लोग जो ये सवाल उठाते हैं, अगर वो मिलना चाहते हैं और सर्टिफिकेशन देखना चाहते हैं, हलाल सर्टिफिकेशन वीडियोस देखना चाहते हैं, हम उनके साथ शेयर करने को तैयार हैं. मगर मेहरबानी करके इस चीज़ को रिलीजियस एंगल ना दीजिए, वो बेहतर रहेगा. डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है. हम देख रहे हैं कि जो वायलेशन हो रही है फूड सेफ्टी एक्ट की, जहाँ पर कलर का इस्तेमाल हो रहा है या इनसेंट्री कंडीशन है, इतना ही आज ये चीज़ें उठी. देखिए, आपने खुद भी देखा होगा जो हमारे नानवाई हैं, जो लोकल सब लोग सुबह उठ के वो नानवाई की रोटी खाते हैं, वहाँ पर भी कहीं सफाई सुथराई नहीं होती है. वहाँ जो चूहों का आना जाना होता है, तो वो चीज़ें हम देखते भी हैं. बहुत सारे ऐसे लोग, रिसेंटली हमने कुछ ऐसे जो ये नॉन वाइज थे उनको हमने सेल कर दिया. तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. सिर्फ एक आइटम के लोग पीछे जाएंगे सिर्फ यहाँ पर, हाँ जहाँ वायलेशन है, चाहे छोटा दुकानदार है, जैसे मैंने इसकी लोकल बेकर की बात की, या जो हमारे चिकन सेलर्स हैं, लोकल चिकन सेलर्स, वहाँ पर भी वो सफाई सुथराई का कहीं कहीं पे ख्याल नहीं रखते. उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की और ज़्यादा शदमत से कार्रवाई करेंगे. या जो बुचर्स हमारे हैं, आपने भी देखा होगा पार्ट्स ऑफ द शीप और गोट जो वो उन्होंने वो बाहर लटका के रखते हैं, विच इज़ अ न्यूसेंस. अच्छा, ये न्यूसेंस है. वो क्या करते हैं, जब अच्छा गोश्त भी अगर उन्होंने वो ज़बह किया हुआ होता है, जब बाहर रखते हैं तो उस पर वो गर्दा या जो वो एक्सपोज हो के वो अनसेफ हो सकता है. तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई ज़्यादा शदमत से करेंगे. डिपार्टमेंट देखो, हमें क्लियर डायरेक्शंस हैं. जो आबिद साहब हैं, जो हमारे सेक्रेटरी हैं, या जो हमारी कमिश्नर मैडम है, मैडम सेठी जी, क्लियर डायरेक्शंस हैं. या सकीना मैडम के जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के हमारी मिनिस्टर हैं, या जो आपने कल देखा होगा कि फूड सप्लाईज़ के जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर, वो खुद निकले थे हमारे साथ. तो गवर्नमेंट लगी हुई है, हम लगे हुए हैं. जो भी वायलेटर्स हैं उनके खिलाफ हम कानून के दायरे में सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे. चाहे वो छोटा दुकानदार है, ये जो मैंने बेकरी वाले की बात की, या 5 स्टार होटल तक, जो भी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट की वायलेशन करेगा, उसके खिलाफ हम कानून के दायरे में सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे. तो हम देख रहे हैं कि जो गुज़श्ता डेकेड की अगर हम बात करेंगे, तो जो फूड आउटलेट्स है या फूड बिजनेस ऑपरेटर्स जो हैं, तो काफ़ी इसमें उछाल देखने को मिला है. इसका ग्राफ जो है दिन ब दिन जो है राइज हो रहा है. लेकिन दूसरी जानिब जो सेट प्रोटोकॉल्स है, पैरामीटर्स है, जिस तरह से आपने कहा कि वायलेशंस काफ़ी हो रही है, तो इन पर कदगन लगाने के लिए फूड सेफ्टी एक्ट को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे आप? और दूसरा, फूड सेफ्टी एक्ट क्या क्या कहता है वो भी ज़रा नाज़रीन को बताइए अगर इस तरह की वायलेशंस देखने को मिलती है. देखिए, सबसे पहले आपने ये कहा कि ये सेक्टर बढ़ गया, तो वो अच्छी बात है, क्योंकि जो हमारे नौजवान, जो हमारे छोटे छोटे लड़के हैं, वो इसके साथ एंगेज हो जाएंगे. मैंने कल भी ये बात की मीडिया में कि हमें ये भी नहीं खुदा न खास्ता करना चाहिए कि जो हमारी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, वहाँ उनको कोई दचका लगे, वो मुतासिर हो जाएं. बिकॉज़ अगर वो मुतासिर हो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? गवर्नमेंट कितने लोगों को रोज़गार दे सकती है अपने लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर. सो हमें उस सेक्टर को भी देखना है कि ये मुतासिर नहीं होना चाहिए. हाँ, रेगुलेट हमें करना है, ये देखना है कि वो अच्छी तरीके से विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ काम करें, उनको हमें एनकरेज करना है. और आपने फूड सेफ्टी एक्ट की बात की. देखिए, एक्ट क्लियर है कि जहाँ वायलेशन होती है तो उसमें जो छोटे
छोटे अगर कोई कहीं पर वायलेशन है, सैनिटरी कंडीशन उन्हें वहाँ अच्छी तरीके से नहीं है, या वहाँ पर उन्होंने कोई जो फूड आर्टिकल रखा है उसमें बैच नंबर नहीं है, या कोई छोटी वायलेशन है, तो दोज आर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। अगर मेजर वायलेशन है, फॉर एग्जांपल यही जो कलर का मामला है, अगर वहाँ हमने सैंपल उठाया तो फिर हमें रिपोर्ट कॉम्पिटेंट लैब से आ गई, उसमें जुर्माना भी है और कैद भी है, दोनों चीज़ें हैं, और वो जो नॉर्मल कोर्ट से वहाँ केस चला जाता है और लेटर ऑन उसमें वो चीज़ें हो जाती हैं। मगर सवाल ये है कि छोटा कोई वायलेशन करता है, बड़ा वायलेशन करता है, ये फूड सेफ्टी एक्ट की वायलेशन है, जो भी वायलेशन करेगा उसके खिलाफ हम, जैसे मैंने पहले भी कहा, जो कानून है उसके दायरे में कार्रवाई करेंगे और ज़्यादा शदमत से करेंगे। ये जो आप एक और बात में जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जो हमारे रेड़े वाले हैं, जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, वहाँ हमने देखा, आपने भी देखा हो कि पिछले दिनों वो एक वीडियो वायरल हुआ था, तो हमने फिर उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई और उस मुहिम के तहत हमने लाखों रुपये का जुर्माना उन लोगों पे आयद किया। देखिए, सिर्फ ये जुर्माना तो चलो चलता रहेगा, मगर इन लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि जिस ट्रेड से, जिस काम से हम रोजी रोटी अपनी कमाते हैं, उस ट्रेड के साथ हम इंसाफ करें। फूड सेफ्टी का जो मामला है, इट्स शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं बार बार इस चीज़ को दोहराता हूँ, ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फूड बिजनेस ऑपरेटर की, उसके बाद बनती है डिपार्टमेंट की, हमें रेगुलेट करना है, और उसके साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हमारा सारिफ है, उस पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो खुद देखे कि जो लेबलिंग है, वो आज का जो हमारा सारिफ है, खुदा के फजल से वो पढ़ा लिखा है, बाहर वो देखे लेबल कैसी है, अगर उसको लगेगा कि लेबलिंग वायलेशन है, हमारे डिपार्टमेंट के साथ राब्ता कायम कर सकते हैं, या इवन भी जो खोल के भी अगर कंटेंट्स में कोई इशू है, वहाँ पर भी उस वक्त भी हमारे डिपार्टमेंट के साथ वो राब्ता कायम कर सकते हैं। और उसके बाद मीडिया की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं बड़ा आपको दाद देता हूँ कि जिस तरीके से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, जब हम सारे लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे तभी जो हमारा फूड मार्केट में है वो सेफ़ हो सकता है, वो अनअडल्ट्रेटेड हो सकता है। तो सर, यकीनी तौर पर काफ़ी अच्छा काम हुआ है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन जो रूरल एरियाज़ है तो वहाँ पर किस तरह की मुहिम आप आइंदा दिनों में जो है वो छेड़ेंगे? क्योंकि अक्सर हमने देखा कि अनचेक्ड जाते हैं, जैसे आपने बताया कि स्ट्रीट वेंडर्स, या शाम को हम देखते हैं बारबेक्यू स्टॉल्स होते हैं, तो शाम को ज़्यादा वो एक्सपोज हो जाते हैं टुवर्ड्स डस्ट, धुआं होता है गाड़ियों का, लेकिन शाम को अनचेक्ड हो जाते हैं। तो इस हवाले से कोई अवेयरनेस प्रोग्राम या रूरल एरियाज़ में इस तरह की कोई ड्राइव? देखिए, बिल्कुल रूरल एरियाज़ में भी हमारी ड्राइव चलती है। ये नहीं है कि वी हैव फूड सेफ्टी ऑफिसर्स एंड डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स इन एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ आवर वैली, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ श्रीनगर में काम हो रहा है, वहाँ भी काम हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं। मगर जो आपने कहा ये कि सुबह और शाम के वक्त यहाँ पर श्रीनगर की मैं अगर बात कहूँगा कि यहाँ जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो बिल्कुल शाम को निकलते हैं, और हमारी डायरेक्शन ये भी रहेगी, क्योंकि मैंने कहा कि जो मैडम हमारी सुमिता मैडम आई, उसने ये बात आपकी बिल्कुल ये बात कही कि सिर्फ ये नहीं है कि आप दिन को इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, सुबह भी, क्योंकि जो हमारे मिल्कमैन होते हैं वो सुबह को आते हैं फ्राम दी विलेजेस एंड अदर एरियाज, एंड देन दे सेल देयर मिल्क इनटू दिस टाउन्स एंड सिटीज़। तो उसकी डायरेक्शन है कि सुबह सवेरे से आप निकलो, और शाम के वक्त जो ये बारबेक्यू वगैरह ये जो चीज़ें हैं, तो ये एक कंप्रेहेंसिव एक मुहिम रहेगी, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इन कमिंग डेज़ इसको हम ज़्यादा शादमत से चलाएंगे। मगर जब लोगों का भी होगा, जब हमें वहाँ से भी लोग ताउन करेंगे, और उसके साथ साथ जब कोई नेगेटिव चीज़ें बोलता है, नेगेटिव चीज़ें करता है, तो मैं नहीं कहूँगा डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी निभाता है, मगर थोड़ा दिल अफसरों का, हम भी इंसान ही है, हाँ, अफसरदा होता है जब ये कहते हैं कि कोई, मैंने ये भी देखा वीडियो, कहाँ थे आज तक, किधर थे? देखो, मीडिया में आज ये चीज़ आ गई। मैंने पिछले दिनों, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि हमने क्विंटलों एक पनीर हमने एक जगह देखा, तो उसको हमने, हाँ, उसमें ज़्यादा मीडिया कवरेज नहीं होगी, डिपार्टमेंट काम करता है, ये नहीं है कि आज करें, आज ही क्यों, वो ये तो डिपार्टमेंट लगा है, उनको कंप्लेंट्स वो करें, हम इंशाल्लाह जो उनकी भी कंप्लेंट होगी, जेन्युइन कंप्लेंट होगी, उसको हम तुरंत एड्रेस करेंगे। तो आप में ये जानना चाहेंगे कि ऑन बोर्ड लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो स्ट्रीट वेंडर्स है, होटलियर्स है, या रेस्टोरेंट ओनर्स है, स्टेक होल्डर्स हैं इस ट्रेड के, तो उनको किस तरह से आप ऑन बोर्ड लेंगे? क्या कोई प्रोग्राम की शुरुआत होगी, अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह वो कंडक्ट किए जाएंगे?
एट लीस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे? बिल्कुल बिल्कुल मदद साहब, आपने बहुत अच्छा एक सवाल पूछा। हमारी एक ऑन गोइंग मुहिम चल रही है जिसको हम कहते हैं फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग। इन लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे उनको सफाई सुथराई रखनी है, या कैसे जो बाकी लवाजमात हैं फूड सेफ्टी एक्ट के उसको उनको वो कैसे अमलाने हैं, या एसोसिएशन वालों के साथ हमारा बराबर रायता है, चाहे जो भी एसोसिएशन है। और मैं एज एन ऑफिसर या मेरे जो हायर ऑफिसर्स हैं वो एनकरेज करते हैं कि अगर एसोसिएशन वाले, बिकॉज उससे क्या होता है, चाहे बेकर्स एसोसिएशन है, जितने भी एसोसिएशन हैं, हम उनको एनकरेज करते हैं। अगर हमें कोई मैसेज देनी होती है तो डाउन द लाइन वो ज़्यादा अच्छी तरीके से जाती है थ्रू द एसोसिएशन। अगर हम उनको बोलते हैं कि ये चीज़ें आपको अमलानी है, और एसोसिएशन वालों के ज़रिए से वो ज़्यादा, इसलिए हमारा रायता बहुत अच्छा है एसोसिएशन वालों से। और आपके प्रोग्राम के माध्यम से भी जो एसोसिएशन वाले हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं उनसे हम गुजारिश करते हैं कि डिपार्टमेंट के साथ वो रायता कायम करें। जो उनकी भी ग्रीवेंस होगी, जेन्युइन ग्रीवेंस होगी, उसको भी हम एड्रेस करेंगे। मगर साथ साथ में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बिकॉज आपको पता है जो फूड सेफ्टी एक्ट है, जो फूड का मामला है, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी सबसे पहले आता है, तो इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं होगा किसी भी मामले में। बाकी हाँ, जहाँ पर वो आएंगे ताउन करने को तैयार हैं, हम उनके साथ ताउन करेंगे। वो भी कंज्यूमर्स हैं, एसोसिएशन वाले भी हम सब कंज्यूमर्स हैं। हमें ये देखना है कि जो हमारी ये रोटी है ये साफ़ सुथरी हो ताकि हमारा सेहत अच्छा रहे और जो ग्राफ ऑफ डिजीज़ है वो कम हो जाए। शुक्रिया आपका न्यूज़18 को वक्त देने के लिए। तो ये थे असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी कश्मीर, जिनका ये कहना है कि लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि महकमा जो है अपना काम कर रहा है और किसी को भी जो फूड सेफ्टी रूल्स है, फूड सेफ्टी कवानीन है, वायलेट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अयूब खान के साथ न्यूज़18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सर कादरी।